and welcome back to my channel Anshika Goel Illustrator, and it's time to level up your illustrations. So today we are going to understand about puffer jacket. What is puffer jacket? So you can see some pictures over here. हमारे पास हम सबके पास इनफैक्ट ये jackets available होंगी in our wardrobe, and we used to carry this in winter season. इसका टेक्सचर कैसा होता है, ये क्यों काम आती है? ये काफी फ्लफी होती है, इसके अंदर इतनी वार्मथ होता है that we always used to carry this in winter to protect ourselves from cold. हमें ये जानना है what is the material that is used to make this puffer jacket. How do we illustrate this? So let's move ahead. सबसे पहले जानते हैं पफर जैकेट क्या है और कहाँ पे इसका सबसे पहले हम देखा गया. So पफर जैकेट को हम डाउन जैकेट के नाम से भी जानते हैं in fashion industry, but usually in our layman language we used to say puffer jacket because it appears to be very puffy and fluffy kind. इसमें quilted texture होता है. Quilted मतलब आप अगर देखोगे तो इसमें बीच में बहुत सारी हॉरिजॉन्टल स्टिचेस हैं. सेक्शंस आर डिवाइडेड, सो वो उसे हम क्विल्टेड पैटर्न कहते हैं, जिससे कि हमारी वो पफीनेस खिल के और अच्छे से आती है. इसके अंदर जो मटेरियल फिल्ड होता है विच मेक्स इट क्वाइट फ्लफी, वो होता है फेदर्स. डाउन जैकेट में फेदर्स का ही यूज किया जाता है, बट आजकल in many of the puffer jackets बहुत सारे artificial चीजें like fiber etc भी यूज किया जाता है to make it look puffy. And it have been originated by Keppel brothers in 1995 when their father arrived at Hudson Airport wearing a red down jacket. तो ये सबसे पहले केपल ब्रदर के फादर के द्वारा पहनना दिखाई गया. हमने इसे पफर जैकेट के बारे में जाना. पफर जैकेट क्या होती है, इसे डाउन जैकेट भी बोला जाता है, क्या मटेरियल यूज किया जाता है इसका. आप यू कैन सी द लुक ओवर हियर, दीज आर द केपल ब्रदर्स, और इसका लुक कुछ ऐसा आता है, इतना पफी और बैगी. Then comes what are the fabric used to make this kind of jacket. Fabric, nylon, taffeta, ripstop are used most often in outwear. Or Oxford cloth, dark and poplin are all popular for outerwear. ये सब यूज किया जाता है. पॉलिस्टर भी इसमें से वन ऑफ द फैब्रिक है जो कि हम मोस्टली देखेंगे पफर जैकेट में यूज किए जाते हैं. हम जो का illustration बनाने वाले हैं that is for nylon puffer jacket, and for that we need to know that what is the texture of nylon, because हमें fabric nylon बनाना है, illustrate करना है. तो as I always says, आपको पता होना चाहिए what is the property of the fabric that is you are going to illustrate. So here nylon down jacket is in our illustration, and nylon is the name of a family of synthetic polymers that are commonly used to make a variety of different types of apparel and consumer goods. So ये बहुत सारे consumer good और apparel के लिए यूज किया जाता है. इसकी property है it has smooth and silky texture, it has better sunlight resistance, softer in touch, excellent abrasion and waterproof. Yeah, this is what we need to know over here. So अगर आप इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देख पाए, you can see a very nice light and dark effect that is coming over here. आप इस पिक्चर को देखेंगे so you cannot recognize if it is silk or nylon because the texture is as smooth as silk. So we need to understand while illustrating हमारा जो texture है बहुत smooth आना चाहिए हमारे illustration में, कोई patches नहीं आने चाहिए. Also it is a waterproof fabric. Moving towards its procedures, and before knowing the procedure, let us know the difference or the main key points that we need to keep in mind while illustrating.
यू कैन सी दिस स्टिचेस जिसे हम क्विल्टिंग बोल रहे हैं, आप इस जैकेट में देख सकते हो। कुछ सेक्शंस में डिवाइड करके ये स्टिच गिवन है, बट इससे हमारी जैकेट पे क्या फर्क पड़ रहा है? सो लुक एट हेयर, ये हमारी दो स्टिचेस हैं और ये जो फैब्रिक है बीच में जो हमारा रहता है ये बहुत स्मूथ लग रहा है, ये बहुत फ्लफी लग रहा है, और हमारे जितने फोल्ड्स अराइज हो रहे हैं वो हमारे स्टिचेस के एकदम आसपास के एरिया में अराइज हो रहे हैं, बोथ इन द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब स्टिच होती है तो उसका दोनों साइड के फैब्रिक्स पे फोल्ड्स अराइज होते हैं। सो हमें ये फोल्ड्स डार्कर शेड से दिखाने हैं और उसके पास में हमें वाइट ब्राइट शाइन दिखानी है। आप यहाँ देख सकते हो कुछ हमें शाइन एरियाज यहाँ पे विजिबल हैं और ये प्रॉपर हमें वाइट दिख रहे हैं। डजेंट मैटर इट्स ब्लू जैकेट और इट्स ब्लू फैब्रिक, ग्रीन फैब्रिक और ब्लैक फैब्रिक। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास दो फैब्रिक्स हैं और दोनों में वाइट लाइट विजिबल है। सो हमें शाइन दिखाने के लिए प्रॉपर वाइट एरिया एज इट इज लीव करना होगा और फोल्ड्स को स्टिचेस के पास दिखाना होगा। For better understanding, let's read out the procedures fastly. And there are about six steps of our procedure, and that is, firstly, make the line art and draw shine. Yes, लाइन आर्ट बनाने के बाद ही हम तुरंत शाइन को भी ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें बेस कोट में आसानी होगी, बिकॉज हमें वाइट ब्राइट शाइन दिखानी है तो वहां तक हमारा कलर नहीं पहुंचना चाहिए। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, बेस कोट करते टाइम जो हमने शाइन ड्रॉ करी है उसको हम एज इट इज लीव कर देंगे। सो इन दिस इलस्ट्रेशन यू कैन सी सम वाइट पार्ट्स ओवर हेयर, ये हमने पहले ही ड्रॉ कर लिए हैं और वहां तक हमने बेस कोट किया ही नहीं। देन आफ्टर डूइंग द बेस कोट, मेक फोल्ड्स यूजिंग डार्क शेड। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डार्क शेड से कुछ फोल्ड्स क्रिएट किए गए हैं, ये कुछ फोल्ड्स हैं जो किए गए हैं जिससे कि हमारे बहुत अच्छे से फोल्ड्स का इफेक्ट आ सके। Add black touch to the dark shades to depict shadow. So you can see over here, ये सारे जो folds हैं ये बेस कोट के कलर से और डार्क विजिबल हो रहे हैं और इनमें थोड़ा सा हमारा ब्लैक टच है, इससे हमारी शैडोज बहुत अच्छे से विजिबल है। अगर शैडो विजिबल होगी तो हमारी शाइन भी और अच्छे से विजिबल होगी। सो हमें इस चीज का खास ध्यान रखना होता है while illustrating that हमारी शैडो और हमारी शाइन दोनों ही बहुत अच्छे से विजिबल रहें। Then give detailings like zipper, elastic, buttons or whatever your jacket is having. So यहाँ पे इतना पार्ट हमारा जिपर का है, ये हमारा इलास्टिक पार्ट है, यहाँ हमारे जिपर्स हैं। सो ये सब डिटेलिंग्स का हमें खास ध्यान रखना है। मोस्टली व्हाट इलस्ट्रेटर्स डू, जो हमारे बिगिनर्स हैं वो क्या करते हैं, फैब्रिक अच्छा ड्रॉ करेंगे, बहुत अच्छे से उसे रेंडर करेंगे, बट स्मॉल स्मॉल डिटेलिंग्स है लाइक सीम लाइन दिखाना, हमारा अगर डार्ट्स है, प्रिंसेस पैनल है, कोई हमने कुछ अटैचमेंट दिया है, हम वो सब दिखाना भूल जाते हैं। तो उस चीज का खास ध्यान रखें टू मेक इट लुक मोर नेचुरल। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिनिशिंग इज द वेरी important part of our fashion illustration. Finishing के टाइम हमें ध्यान रखना है if any stroke is not out of our illustration, या फिर कहीं पे स्माजी इफेक्ट नहीं आ रहा है, कोई कलर डार्कनेस नहीं आ रही है, स्ट्रोक्स प्रॉपर है या नहीं है, we need to check every step very carefully over here. और अगर कोई मिस्टेक आती है so we have to correct that time only. So these all are the procedures. Now let's move towards our illustration part, and for that what color material we need to have is only pencil colors. We need pencil colors of all variety. Here we are going to do it in blue color, so you need to keep shades of blue with you and micro tip pen.
And that's it. So stay tuned for the part 2, that is for puffer jacket illustration. Till then, like, share and subscribe.